कथित शराब घोटाले विच आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दुबारा फसते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने 2 नवंबर ਨੂੰ ईडी ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, यानी कि ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ईडी ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ और ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ अपील की गई। उन्होंने समन भेजा गया। इस तो पहला अप्रैल महीने में अरविंद केजरीवाल ईडी ने बुलाया सी, पुछगिछ हुई सी। उस वेले भी सियासी पद्धर उत्ते बड़ा बवाल मचिया सी। आम आदमी पार्टी के लीडरां ने दिल्ली जाके ते धरना लगा दिता सी, भावें वो पंजाब दे होण भावें किसी होर सूबे दे, पर लगातार जिहड़ा धरना लगाया गया सी। इस तरह के हालात हुण दोबारा बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल नूं दोबारा समन किया गया और कथित शराब घोटाले दे विच नाम होण दी जिहड़ी गल कीती जा रही है। दूजे पासे जे गल करिए आम आदमी पार्टी के लीडर्स की, तो उन्होंने वालों सीधे निशाने केंद्र सरकार उत्ते साधे जा रहे हैं। उन्होंने कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो डरती है केंद्र की सरकार, जिस वास्ते उन्होंने गिरफ्तारी जिहड़ी है वो जरूरी समझती पई है। जे गल करिए MP राघव चड्डा की, तो उन्होंने इत्थों तक कह दिता कि INDIA गठबंधन के जिहड़े सीनियर लीडर ने, जिहड़े नामी लीडर ने, उन्होंने जेलों च डकना चाहती है केंद्र की सरकार, ताकि चोण तो पहला राह पद्धरा हो जाए। खैर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ईडी ਵੱਲੋਂ PMLA ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈ INDIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ईडी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੋਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 22 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 338 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में एजेंसियों द्वारा, ED, CBI जैसी एजेंसियों द्वारा जितने मुकदमे नेताओं पर करे गए, उसमें से 95% मुकदमे बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ, यानी कि बीजेपी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि विपक्षियों के खिलाफ किए गए। आप सब ये बात जानते हैं कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में बताया जाता है कि 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए। 125 में से लगभग 118 बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं, यानी कि विपक्ष के नेता हैं। ये तो जग जाहिर है, आप सबने देखा, समझा, कई अखबारों में भी पढ़ा। और बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, P चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, अनिल देशमुख से लेकर
नवाब मलिक तक, सारे जो बड़े शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उन पर मुकदमे दर्ज करे गए और केसेस को पकाया गया। पकाया इस तरह गया कि जब मौका मिलेगा, चुनाव नज़दीक आएगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती नजर आएंगी, तो समन भेजकर उनको बुला लेंगे, एजेंसियों के चक्कर कटवाएंगे और फिर भी वो नेता नहीं माना तो उसे पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये चलता आ रहा है। और इस बीच एक बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होती है। वो बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट है इंडिया गठबंधन का बनना। इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई और भाजपा को ये समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है और इसी के चलते हमारे सूत्र हमें बताते हैं कि एक योजना बनी है। इन पुख्ता सूत्रों का कहना है, ये योजना है कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेन नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। जब टॉप नेता जेल में डाल दिया जाएगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा? वो तो कोर्ट कचहरी, वकील, एजेंसी, जेल के चक्कर काटता रह जाएगा। पार्टी कैसे चलेगी? तो यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। जब रेस में कोई दौड़ेगा ही नहीं उनके साथ, तो अकेले ही दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी है और उस योजना में पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी हार रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ये 7 की 7 की सीटों की हार बीजेपी को इतना सता रही है कि वो अपने अरेस्ट की शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं और पहला अरेस्ट अरविंद केजरीवाल जी का करेंगे, ताकि इन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ने लायक ना रहे। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो। ये भाजपा का लक्ष्य है। इसके बाद ये लोग अगला अरेस्ट जो करने जा रहे हैं वो एक ऐसे राज्य का है जिसमें 14 सीटें आती हैं। 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा की हालत खराब है और ये झारखंड राज्य, जिस राज्य में जेएमएम पार्टी की सरकार बनी, जब से हेमंत सोरेन साहब वहाँ के मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि वो भाजपा जो 2019 में 14 में से 12 सीटें झारखंड की जीती थी, आज 14 में से 4 सीटें भी जीतती नजर नहीं आ रही है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी। ये लक्ष्य है। इसके बाद बिहार के राज्य में, जहां पर पिछली बार नीतीश कुमार के सहारे भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, शानदार प्रदर्शन रखा था, 40 में से 39 सीटें जीती थी। उस राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, तभी से ये योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। रेस में अकेले भाजपा दौड़ेगी, अकेले जीत जाएगी। इसके बाद अगला राज्य जहां पर भाजपा की एजेंसियां अपनी दस्तक देने वाली हैं वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बेहतरीन मार्जिन के साथ विधानसभा की सीटें जीती और अपनी सरकार बनाई। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है। हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। अगर उन्हें जेल में डाल देंगे तो बंगाल में हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। अकेले रेस में भाजपा दौड़ेगी, अकेले रेस में भाजपा जीत जाएगी। तो अगला जो इनका दस्तक होगी झारखंड और बिहार के बाद, वो बंगाल के राज्य में होगी, जहां 42 लोकसभा सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। इसके बाद दस्तक दी जाएगी केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। जब से सीपीएम की वहां सरकार बनी, पिनराई विजयन साहब मुख्यमंत्री बने, तब से उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आलम कुछ इस कदर है कि केरल में 20 लोकसभा सीटें आती हैं, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में। खाता खोलने के लिए विजयन साहब को हराना और सीपीएम को केरल में हराना असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। आसान बस इतना है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को पकड़ के जेल में डालो। वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये 4-5 मुख्य अरेस्ट करने के बाद अगली दस्तक जो भाजपा की एजेंसियां देंगी वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु फिर एक ऐसा राज्य जहां पर लोकसभा की 39 यानी कि 39 सीटें आती हैं, बड़ा राज्य है। और इन 39 सीटों में से एक भी सीट भाजपा की नहीं है। तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ अलायंस में था, बीजेपी के साथ गठबंधन में था, AIADMK, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चला गया। तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली है। तो तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए, कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि MK स्टालिन जो वहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया, और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और MK स्टालिन को, उनकी पार्टी को कमज़ोर करो ताकि वो तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के काबिल ना बचे। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी, जहाँ पे फिर आने वाले राज्य का चुनाव और आने वाला राष्ट्रीय चुनाव दोनों भाजपा बुरी तरीके से हार रही है। और वहाँ पर BRS पार्टी बहुत मजबूत है। तो BRS पार्टी को दौड़ से हटाने के लिए BRS के शीर्ष नेतृत्व KCR और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। महाराष्ट्र वो राज्य जहां पर भाजपा ने शिवसेना के साथ मिलकर और शिवसेना के भरोसे 2019 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बड़ी सीटें बटोरी। लेकिन जब से शिवसेना ने भाजपा का दामन छोड़ा, अपने रास्ते गई, तब से भाजपा वहां कमजोर हो गई। और आज जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ है। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमज़ोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमज़ोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाएगा। अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है,
वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं, कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये हमारे सोर्सेज पुख्ता तौर पे हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इसी श्रृंखला में, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। ये बेहद खतरनाक है, देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर देश में पार्टियां ही नहीं बचेंगी, नेता जेल में डाल दिए जाएंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, तो हमारे देश की जो नींव है वो हिल जाएगी। हमारे देश की इमारत जिस नींव पे खड़ी है वो नींव नहीं बच पाएगी। एक बहुत खतरनाक खेल देश के लोकतंत्र के साथ खेला जा रहा है। इसकी चिंता आपको भी है, हमको भी है, और 135 करोड़ भारतीयों को है। Subscribe to One India channel and never miss an update.